اللہم صلی علی محمد۔ سنگ اسود کو چوما جاتا ہے، یہ کیوں چوما جاتا ہے؟ تو دیکھیے نسبت، یہ جو احترام ہے، محبت کا مظاہرہ، یہ ہے نسبت کی وجہ سے۔ جناب آدم جس مٹی سے بنے وہ مٹی یہی کی تھی، مگر آسمان پر پہنچی اور منسوب ہو گئی خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ محترم، کعبہ اللہ کا بیت محترم، قرآن اللہ کا کلام محترم، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں محترم۔ تو احترام کب ہوتا ہے؟ نسبت سے۔ اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا گھر، تو جو دو لفظوں کے بیچ میں کا آتا ہے یہی نسبت ہے۔ جیسے اللہ کا خلیفہ، اللہ کا گھر، ویسے ہی حسین کا روضہ، عباس کا عالم، یہ نسبت ہے، نسبت ہے عزیزوں۔ اور یہ سارا احترام نسبت کی وجہ سے۔ جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب کشتی کے پٹرے کاٹ رہے تھے تو جو برادہ گر رہا تھا وہ سونے چاندی کے ذروں میں بدل رہا تھا۔ یہ ماضی کا قصہ ہے کہ دیکھو اگر لکڑی کا برادہ سونے چاندی میں بدل جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے، نسبت کی بات ہے۔ تو اب اگر کسی امام کے ہاتھ کا پانی جواہر میں بدل جائے، ارے کیا سنا جانے گرامی، تو یہ ساری نسبتیں ہیں۔ کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، اللہ کا بیت منسوب ہو گیا نا، اللہ کا گھر، تو یہ کا و کی وجہ سے نسبت پیدا ہوتی ہے۔ قضا کعبہ نبی نے بنایا، اللہ نے بنوایا، قرآن اللہ نے بھیجوایا، نبی لے کے آیا۔ یہ تعزیے، یہ روزے، یہ نبی نے تھوڑی بنائے، اللہ نے تھوڑی بنوائے۔ تو صرف کعبے کا احترام کیجئے، غلاف کا کیوں؟ تھک گئے آپ۔ صرف قرآن کا احترام کیجئے، جزدان کا کیوں؟ کہتے کہ کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے، غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے۔ کیا سنا آپ نے؟ کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے، غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے، قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے، جزدان کا احترام قرآن کی وجہ سے، تو عباس کا احترام اللہ کی وجہ سے، علم کا احترام عباس کی وجہ سے۔ یہ ہے نسبت کی نسبت۔ یہ احترام کرنا یہ بھی محبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے عزیزوں کہ جو شیطان بنا ہے وہ احترام نہ کرنے کی وجہ سے بنا ہے، کہ جب سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تو اس نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ شیطان بنائی اس لیے کہ اس نے تعظیم نہیں کی۔ اور قرآن نے کہا دیکھو انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا۔ تو پالنے والے جب شیطان اتنا خطرناک ہے تو ایک تصویر بھیج دیتا شیطان کی، ایک فوٹوگراف مل جاتا شیطان کا، تو آواز آئے گی ہم نے شیطان کی صورت تو نہیں دکھائی مگر عادت بتائی ہے۔ شیطان کی پہلی عادت ہے یہ کبھی احترام نہیں کرتا۔ اب شیطان کو پہچاننا ہو، روزوں میں جانا پہچانتے جانا، علم اٹھانا پہچانتے جانا، ذوالجناح نکالنا پہچانتے جانا، جو سر جھکاتا نظر آئے فرشتوں جیسا، جو منہ بناتا نظر آئے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، وہ شیطان جیسا۔ عزیزان گرامی، بس گفتگو کو یہاں تک لانا ہے کہ یہ علم، یہ تابوت، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ روزے، یہ اجماع، یہ مجلسیں سب محبت کا مظاہرہ۔ اور پیغمبر نے دو کام کیے، اللہ کی عبادت اور اہل بیت سے محبت۔ عبادت کے بعد محبت نہیں، عبادت کے ساتھ محبت۔ اور یاد رکھیے گا یہ اہل بیت کی محبت اور یہ حسین کی عزاداری اور یہ مولا علی کی ولایت، یہ جو قوم بیٹھی ہے یہاں، یہ اپنی بلڈنگوں سے نہیں پہچانی جاتی ہے، عمارتوں سے نہیں پہچانی جاتی ہے، جائیدادوں سے نہیں پہچانی جاتی ہے، بزنس سے نہیں پہچانی جاتی ہے، حسین کے ماتم سے پہچانی جاتی ہے۔
अज़ाए हुसैन से हमारी शनाख्त है, मातम हुसैन से हमारी शनाख्त है, और ये सब मोहब्बत का मुज़ाहिरा है। ये जो इतनी दूर दूर से आप सफ़र करके इस सरज़मीन पे आए, ये मोहब्बत खींच के लाई है। ये जो रोज़े बन रहे हैं, ये मोहब्बत का मुज़ाहिरा हो रहा है। देखिए, सबसे अच्छी दौलत वो होती है जो मौला हुसैन के नाम पर लुटा दी जाए, और आप अपनी दौलत लुटा के आते हैं, आना भी चाहिए। कासिम जरवली ने कहा कि इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शय का आज़ादार लुटा देता है। बहरहाल दौलत का सबसे अच्छा मसरफ यह है कि उसे अहले बैत के नाम पर खर्च किया जाए, उसे रोज़ों की तामीर में लगा दिया जाए, इसलिए कि सवाब जारिया है, जिसके लिए अभी आपके सामने यहाँ की जमात के सब तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो आपको मुख्तसरन इस रोज़े के बारे में मुत्तला करेंगे। वो आपसे जो भी ताउन हो, आप जो भी कर सके वो इस रोज़े की तामीर के लिए करें। और याद रखिए, हुसैन किसी का एहसान नहीं रखता है, ये उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के नाम पर लग जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लीजिए, तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ की जमात के सब, वो दो बातें आपसे करेंगे, उसके बाद मसा दूर दूर से आए हुए मेरे अजादार भाई बहन, सलाम अलैकुम। पहले तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि इस सर्दी के मौसम में जितनी सहूलतें देनी चाहिए थी जमात ने और से, वो हमने कोशिश करने के बावजूद भी हम नहीं दे पा रहे हैं। आपको तकलीफ़ उठानी पड़ रही होगी, तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग मौला के बुलावे पर यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ। आज दुनिया के हर कोने में हुसैन का नाम गूंज रहा है। हमारी पैदाइश ही माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं के सबब है। हमारी ज़िंदगी ही अज़ादारी है। हमारा जीने का मकसद मौला के बताए हुए रास्ते पर चलना है। आज इसी एहसास के सबब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसे लोग छोटी करबला कहते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम मौला के तसद्दुक़ से आप सबको सलामत रखें और आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। यहाँ पर जितने भी अज़ादार आते हैं, मौला के सभी रोज़ी की तामीरी काम देखते ही कह उठते हैं कि हम करबला में खड़े हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तामीरी काम आप लोगों के ताउन से हो रहा है। अब तक करीबन 1,40,00,000 खर्च हुआ है। अब इसे सजाने का काम बाकी है, जिसमें करीबन 70-80 लाख खर्च होने का अंदाज़ है। यहाँ पर आए हुए सभी अज़ादारों से और यहाँ से जहाँ जहाँ पर मेरी आवाज़ जा रही है, इन्हें इल्तिजा करता हूँ कि जिन्हें मौला ने करम बख्शा है, वो इस सभी करबला के बाकी काम पूरा करने के लिए आगे आएँ और जी खोल के ताउन करें, ताकि ये काम जल्द मुकम्मल हो। दुआ गो हूँ कि मौला आप लोगों की रोज़ी में इजाफ़ा करें, आप सबको सलामत रखें। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बाबा से बड़ी खिदमत कर रही है, उसके लिए ताउन की गुजारिश की गई। आप हजरात भी इन मौला के खिदमतगारों की सेहत के लिए आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के बाबा से बुलंद नाराए हाज़री बाज़ार गिरामी। तो ये सब, ये आज़ादारी, ये मातमदारी, ये सब मोहब्बत का मुज़ाहिरा है। और अजीज़ों, ये अहले बैत की मोहब्बत ही का नतीजा है जो आज तक हम तक ये इबादत, ये शरीयत, ये इताअत, ये सब कुछ पहुँची है। अब अक्सर व बेशतर कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि साहब देखिए, किताब में तो ये लिखा है, शरीयत ये कहती है कि खून बहाना हराम,
शरीयत ये कहती है काले कपड़े पहनना मकरूह, शरीयत ये कहती है। तो देखिए शरीयत जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है, लेकिन शरीयत ये इमाम के लिए कह रही है कि आवाम के लिए कह रही है। 15 रमज़ान को मौला हसन दुनिया में आए, नबी ने कहा लाओ मेरे नवासे को मुझे दो। कनीज़ ने कहा या नबी अल्लाह पहले इसे पाक तो कर दूं। पैगंबर ने कहा तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा। जाग जाए बस 2 मिनट, उसके बाद मसाइब की मंजिल पर ले जाना है, मगर बहुत खास पैगाम है। कहा तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह गुस्साने की कौन सी बात है, ये जो कनीज़ कह रही है पहले पाक कर दूं, ये एक मसला शरई है। आपकी लाई हुई शरीयत इसने सुनाई, का शरीयत सुनाई है, मगर मासूम के मुकाबले में मैं पैगाम दे रहा हूं कि शरीयत की ऐनक से मासूम को न देखना, मासूम की आंखों से शरीयत को देखना। इसलिए कि शरीयत अवाम के लिए और है, शरीयत इमाम के लिए और है। आप कहेंगे दलील, दलील ये है कि हम जिस हुजरे में पैदा हो वो नजिस हो जाता है, और ये इस काबे में आ जाए। अरे आपका जहन कट गया मुझसे, वो पाक हो जाता है। हम नमाज पढ़ते में हाथ हिला दें, नमाज बातिल हो जाती है। ये आलम रुकू में अंगूठी दे दें, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आया विलायत उतर आती है, हमारा बच्चा नमाज में पीठ पर बैठ जाए, इबादत में खलल आ जाता है, ये पुश्त नबूवत पर आ जाए। देखे जो शरीयत कह रही है वो अपनी जगह, लेकिन इमाम के लिए है कि अवाम के लिए है। मेरा बच्चा बड़ा हुआ और चलते चलते उसने ज़मीन से मट्टी उठा के खाई। मैंने शरीयत से पूछा कि जायज़ के नाजायज़, शरीयत ने कहा नाजायज़। मेरे बच्चे ने दीवार की मट्टी खाई, शरीयत ने कहा नाजायज़। मेरे बच्चे ने गमले की मट्टी खाई, शरीयत ने कहा नाजायज़। आखिरी आदमी तक तवज्जो, मेरा बच्चा पड़ गया बीमार, डॉक्टर ने दे दिया जवाब। एक साहब चुटकी में मट्टी लेके आए, मैंने कहा ये क्या है, कहा ये करबला की मट्टी। मैंने कहा अब क्या किया जाए, शरीयत ने कहा यही दवा है, यही शिफा है। क्या सुना अजीजों, तो यहाँ की मट्टी खाई खिलाफ शरीयत, हुसैन के रोजे की मट्टी खाई सबब शफात, सबब शिफा। तो दुनिया वालों के लिए खून बहाया, खिलाफ शरीयत हुसैन के लिए खून बहाया। जिंदाबाद। दुनिया के गम में काले कपड़े पहने, खिलाफ शरीयत। मौला हुसैन के गम में काले कपड़े पहने, सबब सवाब। इसलिए कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ ही इन्होंने किया है कि ये शरीयत का पेड़, इसकी जड़ें सूख रही हैं, हम अपना खून देंगे। ये शजर शरीयत जुल्म की आंधी तुझे गिराना चाहती है, अब्बास के बाजू ले ले। ये शजर शरीयत तुझे ज़ोफ़ हो रहा है, अकबर की जवानी ले ले। तुझे खून चाहिए, असगर मेरे लाल अपने गले का खून दे दे। तुझे सरबलंदी चाहिए, मेरा सर आ गया। तुझे रिदा चाहिए, ज़ैनब अपनी चादर दे दे। माशाअल्लाह 1 घंटे से ऊपर हो गया, लगभग 1.5 घंटा। इतनी देर से आप बैठे हैं, अब मसाइब हो गए। तो मसाइब में ये देखा जाता है कि कोई उठ के जाता नहीं है, बल्कि जो पूरी मजलिस में नहीं भी आ पाते वो मसाइब में ज़रूर आ जाते हैं। इसका मतलब 1400 बरस गुजर गए, लेकिन अभी आपका दिल रोने से नहीं भरा। कोई ये नहीं कहता कि मौलाना मसाइब कम पढ़िएगा, रोते रोते हमारा दिल भर गया, अब हमसे रोया नहीं जाता। अजीज़ों, मैं सवाल करूँ, इस सारे मजमे ने, ये तमाम अफराद, ये सामने मोमिनीन का हुजूम, सब ने करबला का वाक़या सुना है ना? किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने देखा नहीं कि अब्बास के बाजू कैसे कटे? किसी ने देखा नहीं कि अकबर का सीना कैसे छिदा?
किसी ने देखा नहीं कासिम का लाशा कैसे पामाल हुआ, किसी ने देखा नहीं असगर के गले में तीर कैसे चला, किसी ने देखा नहीं कि हुसैन के गले पर खंजर कैसे चला। तो जब आपका सुन के ये आलम होता है तो जरा उस बीबी से पूछिए जिसने दरे खेमा पर देखा कि अब अब्बास का आलम आ गया, अब अकबर का लाशा आ गया, अब कासिम की मैयत आ गई, अब असगर हुसैन के हाथों पर आ गए, अब हुसैन रुखसत आखिर को आ गए। मैं आपको एक वाकया सुनाता चलूँ, तो ये गुजारिश मैंने कल भी की थी, रात में भी की थी और फिर करूँगा कि जब मैं फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ, आप नारे लगाते हैं, आप दाद देते हैं तो पढ़ने वाले को ताकत मिलती है, मगर जब आप चीख के रोते हैं तो हुसैन की माँ आपको दुआ दे के जाती है। वो बीवी जिसकी पसलियाँ भी टूटी है, जिसका दिल भी शिकस्ता है, वो आपको दुआ दे के जाती है। देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। बिहार में एक कस्बा है गोपालपुर, और करीब 60-70 साल पहले वहाँ आशूर को एक मजलिस हो रही थी, और वहाँ के आलिम ने एक ऐसी मजलिस पढ़ी कि लोग रोते रोते बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आशूर का दिन था, फाका शिकनी थी, सारे लोग फाका शिकनी के लिए चले गए, मगर उन आलिम ने देखा कि कोने में एक बुजुर्ग बैठे हैं और चीखे मार मार के रो रहे हैं। ये उनके करीब गए और हाथ जोड़े कि हुजूर आप हमारी बस्ती के नहीं मालूम होते, ज़रा इतना बताएं कि आप कौन हैं, और आप जो इतना रो रहे हैं तो कौन सा मसाइब आपके दिल में ऐसे बैठ गए कि अभी तक आपका गिरिया नहीं रुका। रोने वाले ने कहा भाई मैं सुन के नहीं रो रहा हूँ, जो तूने पढ़ा मैंने अपनी आँख से देखा। अब्बास के कटे बाजू, असगर का छिदा गला, हुसैन का कटा हुआ गला। माशाअल्लाह मैंने अपनी आँख से देखा। इन्होंने हाथ जोड़े, कहा आप कोई नबी हैं, आप कोई रसूल हैं, आप कोई इमाम हैं? कहा न मैं नबी हूँ, न रसूल हूँ, न इमाम हूँ। कहा आप है कौन? कहा मुझे जाफर जिन कहते हैं। मैंने करबला में सैयदा का उजड़ता घर देखा, मैंने देखा मेरा हुसैन कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई बर्ची मार रहा है, या कौतला हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा मैं पहुँचा, मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आवाज़ आई जाफ़र तुमने बड़ी देर कर दी, हमारा अब्बास मारा गया जाफ़र, हमारा कासिम मारा गया जाफ़र, हमारा असगर मारा गया जाफ़र। कहा अब आ गया हूँ, अब मुझे रुक जाने दीजिए, मुझे जंग करने दीजिए। इमाम ने आसमान को देखा, कहा जाफ़र जल्दी चला जा। कहा मुझे वापस क्यों भेज रहे? कहा जा जाफ़र हमारी अम्मा फातिमा आ रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारी अम्मा फातिमा आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीबी फातिमा और करबला, अल्लाह आपको भी ले जाए, करबला मुअल्ला की ज़ियारत कराए। एक आलिम गुजरे हैं ईरान के मुल्ला अब्बास, वो शबे जुमा इमाम हुसैन के हरम में गए और उनके साथ कुछ मोमिनीन भी थे। तो वहाँ पर एक मजलिस की गई, और जब नौहा पढ़ने की बारी आई तो मुल्ला अब्बास ने कहा कि चूँकि हुसैन के पहलू में अली अकबर दफन है, लिहाजा अकबर का नौहा पढ़ दो। लीजिए अज़ादारों ने अकबर का नौहा पढ़ा, सारे ज़ायर ज़ियारत करके चले गए। मुल्ला अब्बास ने ख्वाब में मौला हुसैन को देखा कि कटा हुआ मामा, चेहरे पर असगर का खून, सीने पर अकबर का खून, हाथों पर अब्बास के बाजुओं का खून। और कहा मुल्ला अब्बास जब भी शबे जुमा आना तो मेरी कब्र पर अकबर के मसाइब न पढ़ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीबी सैयदा दुआ देगी। कहा क्या हो गया? कहा कल तूने अकबर के मसाइब पढ़े, शबे जुमा मेरी माँ फातिमा मुझसे मिलने आई थी, तू पढ़ के चला गया, मगर मेरी माँ बार बार हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर। अल्लाह अल्लाह। बीवी फातिमा हाय अकबर कह कह के बेहोश होती रही। बस अजीजों जी चाहता है कि उसी शहजादे के चंद जुमले पढ़ दूं जो हम शक्ल पैगंबर
आया का बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, का बेटा अपनी फूफी से इजाज़त लीजिए। का जब अकबर निकल रहे थे तो ऐसा लगा जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। अजीज़ों आवाज़ें न रोकिएगा खुदा के लिए। हमीद से किसी ने पूछा कि ए हमीद तुझे भी करबला में कभी रोना आया? तो हमीद ने कहा एक बार मेरा कलेजा फट गया। का वो कौन सा मौका था? का वो मौका वो था कि जब हुसैन का जवान बेटा घोड़े से गिरा, आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। सुन सकेंगे आप? का मैंने देखा हुसैन के कानों में आवाज आई तो हुसैन जैसा साबिर दौड़ने लगा। का मैंने देखा दौड़ते दौड़ते हुसैन गिरे, गिर के उठ गए, फिर गिरे, फिर गिर के उठ गए, फिर गिरे, फिर गिर के उठ गए। हमीद कहता है मैं गिर रहा था, हुसैन 9 मरतबा गिरे और गिर के उठ गए, मगर जब अकबर के जिस्म से 10 कदम का फासला रह गया तो अब जो हुसैन गिरे तो उठा न गया। ऐसे जा रहे थे जैसे छोटा सा बच्चा घुटनियों के बल जाता है। ऐना या बुनैया, ऐना या अकबरा, अरे मेरे लाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बीबी सैयदा दुआ दे के जाएंगी। ऐना या बुनैया, ऐ दश्ते नैनवा मेरा अकबर किधर गया? ऐ फौज अशकिया मह अनवर किधर गया? ऐ कौम कुछ बता मेरा दिलबर किधर गया? ऐ दश्ते नैनवा मेरा अकबर किधर गया? क्या कत्ल करके चाह में लाशा गिरा दिया या ज़ेरे खाक मेरे कमर को छुपा दिया? हुसैन चले, आवाज़ आई बाबा आराम से आओ। बाबा ये सिरहाने नाना बैठे हैं, ये दादी बैठी है, ये दादा बैठे है, ये चचा है। हुसैन घुटनियों के बल चलते हुए अकबर के पास पहुँचे। देखा अकबर का हाथ सीने पर है। का मेरे लाल सीने पर हाथ क्यों है? का बस बाबा थोड़ी देर की बात है, मेरा नाना मुझे लेने आया है। का मेरे लाल तेरा बाप साबिर इब्ने साबिर है। ये कह के हाथ को हटाया, एक हाथ को अकबर के सीने पर रखा, 2 उंगलियां अकबर के सीने के अंदर डाली। अब जो नेज़े की अली निकाली, अकबर का कलेजा निकल आया। अल्लाह अकबर। और फिर देखिए, अगर कोई जवान आदमी बेहोश हो जाए तो कम से कम 3 लोग चाहिए जो उसे उठाए। एक कमर से सहारा दे, एक सर को संभाले, एक पैरों को संभाले। मेरा बेकस गरीब इमाम यको तन्हा आले रजा ने नज़्म किया कि अकबर के सीने को अपने सीने से मिलाया। हुसैन खड़े हुए, नजफ का रुख किया। का मुश्किल कुशा अली, मेरे हाजत रवा अली, अरे कड़ियल जवा की लाश उठाता हूँ या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बीबी सैयदा। और फिर लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन। दी सदा अपना पिसर आन के ले जा बानो, छिन गया पर चीजें अकबर का कलेजा बानो। अजीजों बस आखिरी रवायत, कलेजा संभालना। अकबर का लाशा खेमे के सामने लिटाया। आओ ज़ैनब, आओ रुकैया, आओ रबाब, आओ सकीना, आओ लुबाबा, आओ फिज़ा, हमारा बेटा आ गया। सारी बीवियाँ आई, ज़ैनब आई, लाशें पर गिर गई। रबाब आई, लाशें पर बैठ गई। लुबाबा आई, सरहाने बैठ गई। हुसैन ने देखा कि सारी बीवियाँ हैं, उम्मे लैला नहीं है, अकबर की माँ नहीं है। काफिज़ा जाके अकबर की माँ को बुला ला। बाजी तो कलेजा संभालना। जनाब फिज़ा खेमे में गई, देखा खेमे के अंदर अकबर की माँ घुटने पर हाथ रखे, आंखें खोले, बुलंदी को देख रही है। पहुंची का बीबी आपको आपके शौहर ने बुलाया है। कहा फिज़ा ये बाहर शोर कैसा है? कहा आपका अकबर आया है मगर मुंह से बोलता नहीं है, आंखें खोलता नहीं है। ए बीबी आपको शौहर ने बुलाया है, बाजी को मुझे देखना। मजलिस तमाम,
ام لیلا یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی، دائیں بڑھی خیمے کے پردے سے ٹکرائی، بائیں بڑھی خیمے کے پردے سے ٹکرائی، پیچھے چلی خیمے کے پردے سے ٹکرائی۔ فضا نے کہا بی بی چلتی کیوں نہیں؟ کہا فضا مجھے راستہ نہیں دکھائی دے رہا، اے فضا ارے میرا بچہ میری آنکھوں کا نور لے